When the entire BJP cadre and their party leadership is based in Delhi, here on the 4th floor of the Girnar apartment in Kaushambi, Ghaziabad, is the house of the man the entire BJP top brass is taking on. Arvind Kejriwal lives on the 403 house number on the 4th floor here in Girnar apartment, and every single day there is hectic morning that starts 5:30 in the morning. The business begins at 7:30. After meetings, he goes off and addresses rallies after rallies. We are, of course, outside size, and if I can show you some familiar faces, Dilip Pandey of the Aam Aadmi Party is here. Dilip, every morning important meetings, one after another. Yeah, it's happening. Election days are quite close, right? So we have to be on everything and every issue that we need to sort out. So yeah, it's happening every day. Yeah. Dilip, of course, here, and all of them now just a last leg, giving in everything. Today we'll take you through Arvind Kejriwal's campaign trail, how he, the kind of things that he say, the issues that he picks up, and the people, those who make Arvind Kejriwal's campaign tick. So stay tuned to Headlines today as we take you inside 403, and from there, the entire day, Arvind Kejriwal's campaign. अरविंद, बल्कि अभी शुरू आज का दिन शुरू हो रहा है. अरविंद, सुबह सुबह कितने बजे से दिन शुरू हो जाता है? सुबह जल्दी हो जाता है. So, आज क्या टारगेट है? कितनी रैलीज, कितना कैंपेन? सभाएं हैं. अभी तो सुबह से स्ट्रेटजी मीटिंग्स चल रही थी, पार्टी की मीटिंग चल रही थी. 3 सभाएं हैं और उसके बाद मैं रोज रात को अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ 2-3 घंटे. His day begins with this media frenzy. As soon as he comes out, you would see these hordes of cameras and microphones trying to get that space, in that window. Some days when it's an issue that he believes that he needs to pick up, he starts with it, and there are others when Arvind Kejriwal, of course, like today, would not speak but would go ahead and will, of course, get on with his day. So from his Kaushambi house, Arvind Kejriwal today has come to his office. This is the New Delhi MLA office that they have made, and Kejriwal, remember, was the representative of this constituency. This is in the Vittalbai house that is near Constitution Club. This is the office that deals with the constituency. I'll quickly first show you this kitchen that we have here. These boys, those who are always with Arvind Kejriwal, they come here for pit stops, for energy breaks. कितने चाय बनती है दिन में? दिन में एक बार बनती है. बस एक बार बनती है. ये सारा जो इतना सारा चाय बन रहा है, एक ही बार के लिए? नहीं, वो कोई आए थे गेस्ट. लोग आते रहते हैं, लोग भी आते रहते हैं, तो भी बनती आते रहते हैं. क्या नाम क्या है आपका, ये तो बता दीजिए. अजय. तो अब अरविंद केजरीवाल को चाय पिलाई है? अभी नहीं पिलाई है. So Ajay is still waiting for that tea, the cup that he will be, of course, be taking for Arvind Kejriwal. Let me also just quickly go across and show you where Mr. Kejriwal himself is right now. He's in fact inside as of now, and the lunch is on. This is possibly one of the few moments because in the last few days when I have seen him traveling, it's always in the car. Honestly tell me, do you get time to sit and have lunch, or because usually it's in the car, isn't it? हाँ, मोस्टली तो गाड़ी में ही होता है. So is it क्या है आज घर से क्या बनवा के लाए हैं आप अपने लिए? पालक की सब्जी, मटर की सब्जी. Are there any favorites, और जो बन जाता है वही आ जाता है? अब तो जो बन जाता है वही खा लेते हैं. अभी इसके बाद यहाँ से एक टीवी इंटरव्यू है और उसके बाद 3 सभाएं हैं. Long day still ahead, so that crucial dose of energy. Every opportunity jibe is being countered. As he's speaking to us, there are other interviews ongoing currently. सारे सिर्फ सब ले लिए, चुनाव की बात ही ठीक होगी. हाँ, लगता है. So you feel that the situation is never gonna come? There is this lady who is waiting for you. She for a very long time. She just wanted to. कैसी हैं? ठीक हूँ जी. आपके लिए इंतजार करेंगे कि मैं बैठी हूँ. आशीर्वाद देने के लिए आपका आशीर्वाद ही चाहिए. हाँ, दुआएं चाहिए. दुआ में बड़ी ताकत है. के बंदे कहाँ रहते हैं?
बहुत अच्छा। बस बहुत खुशी हुई आपको मिलके। भगवान जो है ना वो आपकी तरफ आपका साथ देगा जरूर। How do you deal with when people come with such affection and they come and see you just waiting? She was waiting here for an hour. एक्चुअली लोग आम आदमी पार्टी में अपने को देखते हैं। आम आदमी पार्टी एक तरह से आम आदमी की आवाज़ है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए लोगों को इतना ज़्यादा लगाव है, प्यार है आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से। Do you get overwhelmed sometimes when expectations and कभी कभी डर लगता है, जो इतनी सारी उम्मीदें होती हैं, और मुझे लगता है ऊपर वाला ताकत देगा इन सारी उम्मीदों को पूरा करने का। आंटी कैसा लगा आपको अरविंद केजरीवाल से मिलके? आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको मिलके, और मेरा आशीर्वाद जो है उनके साथ है। अरविंद कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं अभी आप? खांसी की है क्या? बीजेपी वाले भी आजकल यही पूछ रहे हैं। डायबिटीज़। तो खांसी की मेडिसिन कुछ लेनी अभी शुरू करिए या? खांसी के लिए सुबह ही करता हूँ प्राणायाम, नेति, योगा। भाई रैली की तरफ रहे था। रैली कहाँ है? We are on our way to Nehru Nagar in Patel Nagar constituency, and going through these lanes, one thing is clear that you understand is the clear divide in this election that Delhi is witnessing. These kind of lower middle class, low income areas are the Arvind Kejriwal stronghold, and that is why there is a lot of focus to concentrate here, to consolidate the vote bank, to consolidate his voters here. And you also very quickly see that there is a lot of excitement also when we are going towards Arvind Kejriwal's venue. So this is also an indication on how the politics in Delhi this time has changed. It is now not about caste lines. It is not about any other divide. It's a vertical divide between the have and the have-nots. क्या ख्याल है अरविंद केजरीवाल के बारे में? बातों में दम है। किसकी हवा है यहाँ? केजरीवाल की हवा है। केजरीवाल की। और बीजेपी का यहाँ पे कृष्णा तीरथ जी है। कोई अभी तो बीजेपी में कोई खबर आई नहीं यहाँ पे। अभी इसी का चर्चा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। वो तो जनता के साथ दे रहा, जनता के लिए बोल रहा है। हम नहीं कि आप जनता हो मुख्यमंत्री, हम नहीं हो। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि पक्के मकान बनवा देंगे। अब तो बनवा दिए, एक बार जीते तो बनवा दिए। वो तो ये जो जीते थे कुछ किए भी, तो वो मोदी क्या किए? और 49 दिन जब हमारी सरकार थी दिल्ली में। You see, Arvind Kejriwal's entire focus in USP this election has been that he has learned a little bit of politics. He has understood his vote bank, and at the places where he's strong, he makes sure that you see the surge. These kids, they are the ones, those who are enthused by Arvind Kejriwal. This jharu symbol on their hand with the topi. ये टोपी यहाँ पे भी किसी ने पहना है। ये टोपी किसका लगाया हुआ है? केजरीवाल का। कौन है केजरीवाल? वो। तो और भी नेता आते हैं यहाँ पे? नहीं। और नेता नहीं आते कोई? नहीं। So what she said, she might not be a voter, but what she said is very significant. और कोई नेता नहीं आते यहाँ पे. These kids have seen only one neta here, and that is Kejriwal. And this has been the strength of Aam Aadmi Party's campaign. Something which is troubling the BJP, something that they are now worried about. So we are here at Arvind Kejriwal's rally, and you can see Mr. Kejriwal right there on the stage. But very interestingly, there is an independent candidate, Veena Anand, who is also holding a sabha there, right there. You can see that the gathering that side is for Veena Anand, and the gathering this side is for Arvind Kejriwal. His speech is going on. भाई साहब, ये क्या है पीछे? क्या हो रहा है पीछे? नाच गाना हो रहा उधर। तो आनंद का हुआ। वीना आनंद कौन है? ये इसी केजरीवाल के भूतपूर्व विधायक थे। अच्छा,
तो अभी ये क्या वहाँ पर इनका आज इधर रैली भी चल रहा है, उधर रैली भी चल रहा है, तो क्या आप कंपनी पैसों की बुलाई हुई जनता है या फ्री की बुलाई हुई जनता है? अब यहाँ से भी लोग तो लेकिन सुनने गए हुए हैं वहाँ पे? भोजपुरी गाने चल रहे इसलिए गए हुए हैं। वहाँ गाने का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। So this pink scarf is of Veena Anand. She is an independent candidate from Patel Nagar constituency. But why I have come here is that interesting mix that is happening behind me, the dance that you can see. And why it is interesting is that there are a lot of people on the other side for Kejriwal's rally, and then there is this small gathering here enjoying the dance here at Veena Anand's rally. Considerable number, I mean, I must give that good crowd here, 2, 3, 4, 500 people, but full-blown entertainment here. There is a lot of harakiri chaos happening here all around when Arvind Kejriwal is here. There is no time, so TV interviews, everything is happening right, when he's coming off the stage or he's going up. Shahnaz Hindustani is here. Shahnaz is a staple diet as far as Aam Aadmi Party's campaign is concerned. He's there before Arvind Kejriwal comes to stage in most of the rallies. अब इनको कई बार पहले शुरुआत में कहते थे छोटे कुमार विश्वास हैं, पर अब आके पूरी कमान संभाली हुई अरविंद के आने से पहले शहनाज ही मिलते हैं. मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाता हूँ. ये जो आप देख रहे हैं मफलर मैन की स्वेटशर्ट पहने हुए, दिस गाय इज रोहित. रोहित वॉज एक ज़माने में जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे तो ही वॉज द ऑफिशियल ड्राइवर, आम आदमी सीएम के ड्राइवर थे रोहित. रोहित, एक बात बताओ, अब 1 साल बीत गया है, वैगनआर से इनोवा में आ गए हो, अब कैसा लग रहा है? पिछली साल का माहौल अलग था, इस साल का माहौल अलग है. अच्छा कौन सा था, ज़्यादा ताकतवर कौन सा था? पिछली साल का देखे तो वो अपनी जगह था. इस साल माहौल पिछली साल से तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है. जब इतनी भीड़ होती है, जब इतने इस तरह से लोग मारा मारी हो रही होती है, तो गाड़ी कैसे लगाते हो, कहाँ लगाते हो, क्या करते हो? गाड़ी का तो डिपेंड करता है कि कहाँ जगह मिलती है, कहाँ जगह बनती है. और परेशानी होती है अरविंद को लेके जाने में? अरे पूछो मत. Although we are behind schedule right now, he was supposed to be at another Sabha at 5 o'clock. But behind me, you can see Arvind Kejriwal coming. Massive crowd, and a lot of people, in fact, wanting to meet him. This is the response that Aam Aadmi Party is hoping will get them through. This is the response that they are hoping will get them through this election. Although there is not even a minute that Mr. Kejriwal has, we have been lucky to just hop into his car and try and speak to him. He has been giving a lot of sound bites. It's about politics, election. But let us also try and find out what is beyond that. First of all, what is the change that you see from your campaign last time and your campaign this time? There's huge public support, ground support. बहुत ज़बरदस्त जनता का सपोर्ट है. पिछली बार जितनी लोग आया करते थे हमारी रैली में, उससे कम से कम 3 से 4 गुना लोग आ रहे हैं हमारी सभाओं के अंदर. और लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में जस्ट पागलपन है आम आदमी पार्टी को लेके. आप देख रहे हो किस तरह से. What about this poster war? BJP आपको रोज they are attacking you with various posters, कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट आता रहता है. What about this poster war? What do you feel? Why do you feel this is happening? देखो जी, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इस बार, कोई विजन नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है. उनको पता ही नहीं, फ्रैंकली उनको कुछ नहीं पता दिल्ली के लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं. उनको दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता, मैनिफेस्टो भी नहीं बना पा रहे वो लोग. तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग अब गाली गलौज पे उतर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल को जंगल भेज दो, केजरीवाल बदकिस्मत आदमी है, उसकी किस्मत ख़राब, नसीब बदनसीब है. फिर वो किरण जी ने मेरे बारे में बोला कि ही इज़ हाईली टॉक्सिक, ही इज़ अनकूथ, ही इज़ अनसिविल. नूपुर शर्मा जी कहती हैं केजरीवाल बंदर है. बीजेपी के एक यूपी के नेता ने क्या है, केजरीवाल हरामखोर है. ये राजनीति है उनकी. इन कंट्रास्ट हम लोग कह रहे हैं हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे, हम 500 नए स्कूल बनाएंगे. हम लोग कह रहे हैं हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा देंगे, हम रिश्वतखोरी बंद करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बटन.
ये हमारी राजनीति है और वो उनकी राजनीति है। रोक इसलिए रहा हूँ कि आपके उधर रैली चल रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी एक कार्यक्रम चल रहा है, जनता आई हुई है, वीना आनंद ने ये रखा हुआ है, यहाँ पे नाच गाना चल रहा है, फॉर्मर आपकी एमएलए थी। तो ये आपको लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे थे यहाँ पे, आप उधर की रैली चल रही थी, यहाँ गाने चल रहे थे, इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्राउंड पे हर्ट हो सकते हैं आप? नहीं सर, जनतंत्र है, जनतंत्र में सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। चुनाव लड़ना, वोट डालना अच्छा है, सबको लड़ना। चलिए, और भी हम थोड़ी देर और भी बातें करेंगे अबाउट पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। टेल मी वन थिंग, इन दोनों में से कौन सी बोतल में से आप पानी पीते हैं? दोनों से। दारू नहीं है इसमें। गर्म पानी है, मेरा गला खराब है ना, तो वो मिक्स करके पीता हूँ, ठंडा और गर्म। घर से सुबह थर्मस ले आता हूँ गर्म पानी की, इसमें बॉइलिंग वाटर है तो वो थोड़ा ठंडा मिक्स करके पी लेता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क यू, मैं बड़े दिनों से मैं सोच रहा था आपसे ये पूछने की कि आपके पोस्टर्स कहते हैं जनता का सीएम, आम आदमी। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल क्या वॉलेट लेके चलते हैं? नहीं, जेब में पैसे नहीं लेके चलते? थोड़े बहुत पैसे हैं, वॉलेट नहीं रखता मैं, वॉलेट की आदत नहीं है। अरे कितने पैसे लेके चलते हैं अरविंद केजरीवाल? अभी बता देता हूँ। 500, 600, 700, 800, 500, 1300 रुपये। 1300 रुपये? तो ये आपका क्या, ये आपका दिन का खर्चा मिलता है या ये कैसे हिसाब लगा के निकले हैं? नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। So we will continue talking to Arvind Kejriwal. Of course, we'll talk about more about his vision for Delhi, more about his opponents, and also these anecdotes that Mr. Kejriwal is going to tell you today about how things work, about who makes his campaign possible, who makes his things work. Arvind Kejriwal, we'll let him go right now and try and make our way onto the stage and see how Mr. Arvind Kejriwal's Sabha number 2 for the day, which is starting a little late because there was a lot of people in the other one. Let's see how this one goes. राम है इनका नाम और राम काफ़ी समय से अरविंद के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब इंतजाम आप देख रहे हैं, स्टेज, ऑडियो, अरविंद कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बोलेंगे, ये सारा काम राम का होता है। राम, रोज कब आता है तुम्हारे पास मैसेज की कल कहाँ सभा है और तैयारी कैसे होती है, कितना टाइम लगता है? ये हमारी एक कैंपेन कमेटी है जो कि हमें सूचना देती है कि अगली सभा हमारी कहाँ पे होनी है, अगले दिन में, पूरे दिन में क्या क्या सभाएं कहाँ पे होनी है पूरे दिल्ली में। उस शेड्यूल के हिसाब से हमारी 5-6 लोगों की अलग अलग टीम है जो पहले जाके वहाँ सारी चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि भीड़ कहाँ से आएगी, कहाँ बैठना है, साउंड का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। दूसरा, अरविंद का गला खराब रहता है, उसके लिए साउंड का प्रोविजन किस तरीके से हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक बताओ, तुम सब कुछ मैनेज कर लेते हो, स्टेज, जनता भी मैनेज करते हो क्या? बस में भर के आती है जनता, तुम लाते हो बस से भरवा के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं भी बस से भर के आती है, सब हम अपने अपने कॉलोनी से, क्योंकि हम विधानसभा के अंदर करते हैं तो जो भी व्यक्ति होती है अपने अपने घर से आती है। इन सभाओं में हमारे पास कोई बस नहीं लगाई जाती, कुछ नहीं लगाता, लोग अपने जोश के साथ यहाँ आते हैं। मोदी जी और उनकी पार्टी ने खर्च कर दिया, कांग्रेस ने खर्च कर दिया, लोकसभा। पहले तो बताइए कि आप सब लोग एक जैसी पग में क्यों हैं? ये हमारा पंजाब का, हमारे भगत सिंह की निशानी है और हम भगत सिंह की सोच लेकर इस पार्टी में आए हैं और हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। Let me also show you one thing. I am usually not very happy when there are tall people with me. Look at this my friend here. Look at him. And I am 6 feet, ladies and gentlemen. I'm telling you, I'm 6 feet. कितनी हाइट है यार? 6'10". मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं एक मंजिल पे खड़ा हुआ है, दूसरे तरह से वहाँ बात कर रहा हूँ। पर ये बताओ कि दिल्ली में जब सबसे ज्यादा घूम रहे हो तो कई बार लोग नाराज हो जाते होंगे कि तुम धक्के देते हो कि अरविंद को लाने के लिए। तो नहीं, नाराज होते, वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, उनको पता है कि हमारी भी ड्यूटी है और हमसे पूरा कोऑपरेट करते हैं। वो प्यार ही इतना देते हैं केजरीवाल जी को। You know the advantage that this guy has is that when Arvind is coming, ये ऊंचाई से ही देख लेते हैं कि अरविंद कहाँ से आ रहे हैं, इनको और कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। धोखा दिया, झूठ बोले, हमें मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। हम कितनी बार बोल चुके किरण बेदी जी को डिबेट करने होगा। That's the Delhi police vehicle that you see, and in front of that is Arvind Kejriwal's vehicle. Let's just try and park you near that. Exactly. So that there you can see is Arvind Kejriwal himself in his car, the one that we were just a little while back. अब मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अरविंद केजरीवाल के की कमांडोज से। ये ट्रेनिंग कहीं से लेकर नहीं आए हैं, दिल्ली पुलिस के नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खुद के वॉलंटियर्स हैं जो काफ़ी दिनों साथ में हैं। ये हैं अमित, इन्हें प्यार से बोलते हैं बाबा। बाबा, ये बताओ कि इतने महीनों से, साल से ज़्यादा हो गया है, अब तुमको ट्रेनिंग ठीक से हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी पूरी अरविंद को सेफ सिक्योर करने की?
हाँ लगभग हो गई है लगभग हो गई है। हाँ, थोड़ा स्टेज पे बाकी है। खड़े तो ऐसे हो जाते हो जैसे तुम एसपीजी वाले हो। हाँ उसकी बस थोड़ा ड्रेस की कमी है और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। की कमी है। और एक एक करके मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर वीरू जो हैं, वीरू कभी कभी ही डबल्स अप एज अ ड्राइवर, समटाइम्स ही डबल्स अप एज अरविंद केजरीवाल बॉडीगार्ड, बट दे आर ऑलवेज देयर विद हिम। जहाँ भी अरविंद जाते हैं साथ में जाते हैं। वीरू, कितने घंटे सोते हो पहले तो ये बताओ? 3 से 4 घंटे। 3-4 घंटे। और प्लान कब आता है? कौन प्लान करता है कि तुम्हें किस दिन जाना है, कहाँ जाना है? प्लान पूरी टीम बैठ के बात करती है कि किसकी क्या कौन सी जगह ड्यूटी है। उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए रात में हमारा प्लान बनता है। अच्छा। कि कहाँ कौन बंदा क्या करेगा। और दुर्गेश हैं, दुर्गेश is all he whenever Arvind is out, he is the one responsible to put food in his car. He is the one responsible to make sure that there is hot water in his car because he has a bad throat. दुर्गेश, सुबह सबसे पहला काम घर में आते ही जब अरविंद के घर पहुंचते हो तो क्या करते हो? फर्स्ट हम जाते ही पानी को बॉईल करते हैं एंड साथ ही ब्रेकफास्ट क्या है और लंच में हमने क्या लेना है वो सारा चेक करना है। उनका जैकेट एंड मफलर वो सारा गाड़ी में। मफलर तो बड़ा ज़रूरी है मफलर मैन के लिए। वो टाइम से सारा कुछ गाड़ी में रखना और उसके बाद आगे का। अच्छा, सब लोग एक बात ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल नाराज़ होते हैं कभी? किस बात पर नाराज़ होते हैं? नहीं होते। नहीं होते? तुम लोग डांट नहीं पड़ती? कभी नहीं पड़ी? यार क्या बात कर रहे हो यार। जैसे कि आज तक कोई गलती का हमने कोई गलती नहीं की जिससे हमारी डांट पड़े। अरे वाह, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो अपने काम में। सारी दिल्ली की जनता में खूब जोश है। सारी दिल्ली की जनता कह रही है It's 8 o'clock in the evening and third and final public gathering of Arvind Kejriwal. He is right now on the stage and you can see people here in the Karol Bagh constituency have come out to listen to him. If you go through this entire speech of Arvind Kejriwal, everywhere he's going, there are few things that he's picking up. He starts with emotive issue. He talks about the Prime Minister calling him a Naxalite. He talks about various names that BJP leaders are calling him with. Then he talks about his crucial Bijli Pani Sarak, wants to connect with the people, and right now, as he's saying, he's asking people for forgiveness that he left the rule in Delhi in just about 49 days. He resigned as 49 days after being sworn in as the chief minister, talking about trying to once again get that emotional quotient up, talking about that we are human and we made mistakes. So after 3 public rallies, this is the last engagement of the day. Arvind Kejriwal in his own constituency, he has this is what he does every single day. He comes here after the public rallies, small meetings of the people in small blocks, but making sure that he is in fact he goes and meets his people. Arvind Kejriwal, if you can see behind me, not many people, not a public gathering of that magnitude, but he makes sure that every single day he comes to his own constituency, trying to get that personal connect going with people here.